हेलो। यस सर। गुड मॉर्निंग। चलिए हम गुड लोग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग सेमीकंडक्टर रिवाइज कर रहे थे। कल हम लोग पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन तक हम लोग पढ़ लिए थे, नहीं? यस। हेलो। पीएन जंक्शन तक हम लोग कल स्टडी कर लिए थे ना? व्हाट इज अ पीएन जंक्शन? कौन बताएंगे? पीएन जंक्शन, व्हाट इज अ पीएन जंक्शन? हर्ष, हर्षराज, हर्षराज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। पीएन जंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ यू डिफाइन द पीएन जंक्शन? पीएन जंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? When p type and n type are joined together, then it is called pn junction. What is a depletion layer? The depletion layer consists of two charges, positive and negative, of both p and n type semiconductor. बहुत गंदा रिवीजन Sir, किए the हो यार। midpoint of both conductor. बिल्कुल गलत है आपका, है ये डिफिनीशन। कहां से ऐसा पढ़ रहे हो? गलत है। डिप्लेशन लेयर उसको थोड़ी बोलते हैं। और कोई बताइए। It is a thin layer. हाँ It is a बलजीत thin बोलिए। layer between P and N type. क्या फिर से It is बोलो? a thin layer between P and N type semiconductors where there is no conduction electron. कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। हाँ ये लेकिन थोड़ा सही है, लेकिन पूरा एग्जैक्ट सही नहीं है। थोड़ा बहुत सही चल रहा है लेकिन सही पूरा नहीं है। डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, कल भी मैंने पढ़ा है आपको। डिप्लेशन लेयर, दिस इज अ पीएन जंक्शन। कल भी मैंने आपको कहा था कि इसको ढंग से पढ़िए। पी टाइप और एन टाइप। The p type, the majority charge carrier in the p type is the holes. Minority is the free electron. Free electron. Whereas in n type, the majority charge carrier is the free electron. This is a, अब देखिए, in p side, since the in p type the majority charge carries the holes, so due to the high concentration of this positive charge carrier, it get diffused, and after diffusion it comes right side of the junction, that means towards the n side. And it get neutralized from the this free electron. Like that, the high concentration of n side is the free electron, so due to the majority charge carrier in the n side is the free electron, so due to the high concentration of this one, this free electron, it get diffused
and after diffusion it comes toward the left side of the junction. So the near the junction a layer is formed. A layer is formed. This layer is called depletion layer. This layer is called depletion layer. This is the depletion layer. तो ये डिफाइन होगा, मतलब डिप्लेशन लेयर ए लेयर विच इज फॉर्म नियर द जंक्शन. इसका जो डिफिनेशन होगा, ए लेयर which is formed पापा तो नाश्ता ले जाने के लिए तैयार थे कि नाश्ता बना दो हम लोग का. मानसी कुमारी, मानसी नाश्ता बन गया तो अपने पास रखिए, पूरे सबको मत खिलाइए. A layer which is formed near the junction due to the diffusion of high concentration of holes from the p side and free electron from n side is called depletion layer. A layer which is formed near the junction due to the diffusion of high concentration of holes. कहां से? From p side and free electron from n side is called depletion layer. In depletion layer, this is the immobile charge carrier. A depletion layer consists immobile charge carrier. A depletion layer consists of immobile चार्ज कैरियर, इसको बोलते हैं. एंड दिस डिप्लेशन लेयर इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द कंडक्शन ऑफ द करंट. इफ डिप्लेशन लेयर इज थिक देन नो करंट विल पास थ्रू इट. इफ डिप्लेशन लेयर थिन होगा तभी पास आउट करेगा. ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इमोबाइल चार्ज कैरियर, इसको क्या बोलेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इमोबाइल चार्ज कैरियर इज कॉल्ड barrier potential. barrier potential. Good, it is called barrier potential. What is the function of barrier potential? What is the function of barrier potential? It helps to flow the majority charge. Yes, सही बात है. It opposes the flow of majority charge carrier. And if the value of external source is greater than the barrier potential, then the current will pass through it. So, depletion layer, a layer which is formed near the junction. This is a junction. किसके कारण हुआ? ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ. ये वर्ड को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल्स फ्रॉम p साइड एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n साइड इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर. अब देखिए,
What is the basic difference between the PN junction and PN junction diode? PN junction diode किसको बोलेंगे? हेलो, पीएन जंक्शन डायोड किसको बोलते हैं? Sir, when there is a metal coating at the side ends. बिल्कुल सही है, गुड. व्हेन बोथ साइड ऑफ पीएन जंक्शन को अगर मेटल से कोटेड कर देंगे, देन इट बिकम्स द पीएन जंक्शन डायोड. जब डायोड बन जाएगा तब इसका हम लोग प्रैक्टिकल यूज करते हैं. द सिंबल फॉर द पीएन जंक्शन डायोड इज, दिस इज द सिंबल for the PN junction diode. This arrow is the P type and this vertical bar is the N type. This arrow represents the P type and the vertical bar represents the N type. आपके ऑफलाइन एग्जाम प्री बोर्ड का होंगे जनवरी में. ये आपको पता है? Yes, sir. हाँ, प्री बोर्ड का एग्जाम जो है 70 मार्क्स के एग्जाम होंगे, फुल कंप्लीट 70 मार्क्स का. क्योंकि अभी तक आप लोगों की आदत बनी हुई थी 10 मार्क्स का एग्जाम देने का, मैक्सिमम 35 का अभी दिया. अब ये कंप्लीट 70 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. कंप्लीट बोर्ड का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे होगा. आपने सीबीएसई सैंपल पेपर को देखा है? आप लोगों ने सीबीएसई सैंपल पेपर देखा है? No, sir. एक इसको www.cbse.nic.in से चेक कर लीजिए, उसमें पैटर्न पता चल जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आने वाला है बोर्ड एग्जाम में. सारे बच्चे इस चीज को ध्यान दें कि जब ये सीबीएसई से डाउनलोड कर लीजिए आप सीबीएसई का ये www.cbse.nic.in से आप जाकर के डाउनलोड कर लें सिलेबस इसके सैंपल पेपर को. अगर दिक्कत होगी तो मुझको बोलिएगा, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा. और उसको गो थ्रू कीजिए, उसी पैटर्न पे बोर्ड के क्वेश्चंस आपके आएंगे, इसलिए ये ध्यान रहे. नाउ कम बैक, कम टू दिस चैप्टर. नाउ biasing of current. What is the meaning of biasing? What is the meaning of biasing? Diode of connected external with source. external voltage. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. अब देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ बायसिंग ऑफ करंट. एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है रिवर्स बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं कि व्हेन
अब देखिए, when p type of semiconductor is connected with the external source and n type is connected with the negative terminal of the source, then the biasing is called forward biasing. Forward biasing बोलेंगे when p type of semiconductor is connected with the positive terminal of the cell and n type is connected with the negative terminal of the cell, then the biasing is called forward biasing. In forward biasing, depletion layer is thin. Depletion layer is thin, and so the resistance near the junction is very low. Resistance near the junction is very low. So the current will flow from p side to n side. अब देखिए यहां पे फिर क्या होता है. Initially, the value of barrier potential is greater than the value of external source, then no conduction will take place. अब इसको इस तरह दूसरे ढंग से समझिए, इस बैरियर का मतलब क्या हुआ? हिंड्रेंस करना नहीं. अब सपोज दैट कहीं पे बैरिकेडिंग लगा हुआ है, वहां पर फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू पब्लिक. तो पब्लिक चाह करके भी फोर्स हिंड्रेंस को कवर नहीं कर तोड़ नहीं सकती है, बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकती है. लेकिन जैसे जैसे मॉब बढ़ता जाएगा पब्लिक का, तो क्या होगा? वो इधर उधर से निकलना शुरू कर सकता है. जैसे पब्लिक का मॉब जो है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ फोर्सेस से, तो क्या होगा बता सकते हैं? बैरिकेडिंग टूट जाएगा और पब्लिक वहां से निकलना शुरू कर देगा, भाग जाएगा तेजी से. सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है, या इसको दूसरे ढंग से और भी समझ सकते हैं हम लोग. जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक हिंड्रेंस दे रहे हैं और यहाँ पे वाटर को फ्लो कर रहे हैं, लेस अमाउंट ऑफ वाटर है, तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर है तो यहां पे है आकर के रुक जाएगा. अब जैसे जैसे अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ाते जाएंगे तो हल्का हल्का वाटर कहीं इधर से निकलेगा, कुछ इधर से निकलेगा. एज सुन जैसे नंबर ये वाटर का अमाउंट और बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इसको ये ब्रेक कर देगा और ये वाटर यहां से फ्लो कर जाएगा. नहीं, ऐसा होता है ना. सेम कॉन्सेप्ट यहां पे इस पे है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग क्या है? कि इनिशियली द वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, then no conduction will takes place. As soon as the value of barrier potential increases step by step, then the little amount of current begins to flow. यानी लिटिल अमाउंट, यहाँ पे इनिशियली बैरियर इसका वैल्यू ज्यादा था, ये कांस्टेंट चला जा रहा था. As soon as the value of barrier potential increases, then the little amount of the current begins to flow. फ्लो होना शुरू कर दिया. As soon as the value of external source is greater than the value of barrier potential, then a large amount of the current flow कर गया. So the voltage at which
a large amount of current flow is called knee voltage. This voltage is called knee voltage. That means knee voltage, the voltage at which the conduction takes place rapidly, is called knee voltage. knee voltage इसलिए बोलते हैं, इसका शेप जो है वो नी टाइप का होता है. That's why it is called. So this is a characteristic of forward biasing. Forward biasing, when P side is connected with the positive terminal and N side is connected with the negative terminal. In forward biasing, depletion layer is thin. As the depletion layer is thin, then the resistance of junction is also very thin. So conduction will takes place. When the value of external source is greater than the value of barrier potential, a large amount of the current flow. The voltage at which it shows these properties, this phenomena, is called knee voltage. This is a forward biasing. किन्हीं को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं. किन्हीं को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं. हेलो, No, sir, no problem. okay. Now reverse biasing. Reverse biasing, when P type of semiconductor अब देखिए, when P type is connected with the negative terminal of cell and N type is connected with the positive terminal of the cell, P type is connected with the negative terminal of the cell and N type is connected with the positive terminal of the cell, then the biasing is called reverse biasing. The depletion layer is thick. In reverse biasing, depletion layer is thick and the resistance near the junction is very high. Is high. That means no conduction will takes place. अब इसमें थोड़ा बहुत लिटिल बिट अमाउंट ऑफ करंट जो भी फ्लो करता है, कैसे करता है ये बता सकते हैं? In reverse biasing, the P type is connected with the negative terminal of cell or N type is connected with the positive terminal of cell. The biasing is called reverse biasing. The depletion layer is thick, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा. तो ये मुझको आप बता सकते हैं. अब इसमें लिटिल बिट करंट जो भी फ्लो करता है, क्यों करता है, किसके कारण करता है? बता सकते हैं कोई भी? सर रिवर्स बायस वोल्टेज के कारण. रिवर्स बायस वोल्टेज के कारण. अच्छा, ये जो है
एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है इसका करंट एक्सटर्नल सोर्स से। और कोई बता सकते हैं? ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो नहीं करे, मेजॉरिटी से तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं जी, मेजॉरिटी से तो फ्लो करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी तो आपका कनेक्टेड है निगेटिव टर्मिनल से। अच्छा, मेजॉरिटी से क्यों नहीं फ्लो करेगा ये बता सकते हैं कोई? मेजॉरिटी से फ्लो क्यों नहीं करेगा? मेजॉरिटी कारण पी फॉरवर्ड बायसिंग में क्यों फ्लो हुआ, इसमें क्यों नहीं फ्लो हुआ, ये कौन बता सकते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग में क्यों करंट फ्लो किया और इसमें क्यों नहीं किया, ये कौन बता सकते हैं? हेलो, कोई बता सकते हैं? शिप्रा सिंह 12C। शिप्रा सिंह, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। और कोई बता सकते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट क्यों फ्लो किया, इसमें क्यों नहीं किया फ्लो? इसका रेजिस्टेंस थिन क्यों है, इसका रेजिस्टेंस थिक क्यों है, इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम क्यों है उस केसेस में? और कोई बता सकते हैं? मानसी कुमारी, यस सर। बोलिए बोलिए। शुभम कुमार, शुभम कुमार बता सकते हैं? शुभम कुमार, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। मेरा क्वेश्चन था कि रिवर्स बायसिंग में क्यों नहीं करंट फ्लो कर पा रहा है और इसमें क्यों करंट फ्लो कर रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही शुभम। बलजीत सिंह बता सकते हैं आप? बलजीत सिसोदिया बता सकते हैं? आवाज नहीं आ रही है। देखो मैं बता दे रहा हूं। अब देखिए, अभी बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना होगा? बोर्ड एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, टुवर्ड्स कॉपी किताब जाना पड़ता है। क्या ऐसा होता है कि कॉपी किताब को खोल के हम रख दें और कहीं घूमने चल जाएं तो अच्छा कर लेंगे? हेलो हेलो, यस सर। मैं कह रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें क्या करना होगा? टुवर्ड्स कॉपी किताब पढ़ाई पे जानी होगी या टू किताब कॉपी से बाहर कहीं खोल के रख दिए और घूमने चले गए? किस बेसिस पे नंबर ज्यादा आएगा आपको, पढ़ाई से या उधर घूमने से? पढ़ाई से। पढ़ाई से। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है। अब यानी अगर हमको करंट फ्लो करना है तो टुवर्ड्स जंक्शन जाना ना होगा क्या? टुवर्ड्स जंक्शन हमें जाना होगा। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्यों गया, उसमें क्यों नहीं हुआ, ये देखो।
अब इसमें देखिए, अब फॉरवर्ड बायसिंग कुछ बता रहा हूं, इसमें क्यों करंट फ्लो, क्यों इसका इसका ये डिप्लेशन लेयर थिन क्यों है, इसका रेजिस्टेंस कम क्यों होता है, ये देखो। अब पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है। होल को ट्रीटेड कैसे करते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज कैरियर से करते हैं। अब ये पॉजिटिव, ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करके किधर गया, टुवार्ड द जंक्शन गया। यानी इसको अब जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू धीरे धीरे घटता चला जाएगा और यहां से क्रॉस आउट कर जाएगा, तो यहां पर फ्लो कर गया। लेकिन अब रिवर्स बायसिंग की जब हम बात करते हैं तो पी टाइप में ये पॉजिटिव किसे कनेक्ट है, निगेटिव से, ये अट्रैक्ट होकर इधर आ गया, ये भी किधर कनेक्टेड है, ये भी अट्रैक्ट होकर किधर आ गया, टुवार्ड द सेल ना आ गया जी, टुवार्ड द जंक्शन गया कोई, No, sir. नहीं गया ना, नो सर। टुवार्ड द जंक्शन गया ही नहीं तो कंडक्शन कहां से होगा, क्लियर। अब लिटिल बिट जो भी फ्लो कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, वो माइनॉरिटी के कारण कर रहा है। रिवर्स बायसिंग में लिटिल बिट अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो करता है वो ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से, मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी, हर्षराज, माइनॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी तो अट्रैक्ट होकर इधर आ गया निगेटिव पे, इसका भी मेजॉरिटी आ गया इधर टुवार्ड द जंक्शन, तो गया ही नहीं, वो थिक बना हुआ है। अब इसमें लिटिल बिट जो भी गया वो निगेटिव, ये जो निगेटिव है ये निगेटिव निगेटिव से रिपेल हो गया, ठीक है, और ये आ गया टुवार्ड द पॉजिटिव। अब ये जो रिवर्स बायसिंग है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, इसको एक्सटर्नल बैटरी से कोई रिलेशन नहीं है। तो अब कैसे करंट फ्लो किया भाई, बता सकते हैं, ये रिवर्स बायसिंग इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स। तो अब इसमें कंडक्शन जो हुआ किसके कारण हुआ, बता सकते हो कोई भी, एनीवन? इसमें लिटिल बिट जो भी गया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, Minority carriers. नहीं बेटा, वो नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूं कि यहां ये जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स, ये एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे फ्लो कर रहा है, by collision. ये ऐसे कर रहा है। अब यहां से देखो, अब इससे जब कनेक्शन किया हुआ इससे इसको हीट मिल गया, हीट मिला ना भाई, इससे ये जो करंट से हीट मिलता है, रिलेशन है ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यस सर। ये रिलेशन देखा है कभी, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. हाँ, तो अब उससे, अब क्योंकि ये जो सोर्स है, इस सोर्स से उसको हीट मिल रहा है, अब इस हीट से क्या हुआ, उसका कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया। जब जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, टूटेगा ना जी, आया ना, बोलो। यस सर। यस। Yes. जैसे आप देखो, फिर यहाँ पे क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पूरा कंप्लीट सेमीकंडक्टर ही इंटरेस्टिंग चीज है, उसको प्यार से समझने का चीज है। अब यहाँ पे क्या था, अब ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, अब इससे इसको हीट मिल गया, तो हीट मिलने से क्या हुआ, इसका कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया। जब कोवेलेंट बॉन्ड जैसे टूटेगा, हीट मिल सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से पहले हीट मिला, तो उससे क्या हुआ, थर्मल एक्साइटेशन शुरू हो गया, एक्साइटेशन शुरू हो गया ना, पहले इसको यही हीट मिला, हीट से वो थर्मल एक्साइटेशन शुरू हो गया, उस एक्साइटेशन से क्या हुआ, उसका कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रैपिडली मूव कर गया। द वोल्टेज एट विच दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स रैपिडली इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, या इसी को हम लोग जीनर वोल्टेज भी बोलते हैं। द वोल्टेज एट विच द इलेक्ट्रॉन moves rapidly after the broken of the covalent bond is called breakdown voltage और Zener voltage। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ग्राफ आएगा, दिस इज अ ग्राफ,
this is a voltage, this is I. This is a characteristic of reverse biasing. इसका हम प्रैक्टिकल भी आपको कराएंगे, इसका प्रैक्टिकल भी आपको मैं दिखाऊंगा। देखो यही कारण है, या इसमें जो हम लोग ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं, किसके बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं किसके बीच का कर रहे हैं? सर VI ग्राफ। VI का ग्राफ। तो जनरली VI का ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होता है? VI का Straight line. स्ट्रेट लाइन होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यस सर। ओम्स लॉ के बेसिस पे नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन VA एंड I स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो दिस इज अ फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज अ रीजन कि ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। यहां पे वो ओम्स फेल कर गया, स्ट्रेट तो नहीं गया ना हमारा नेचर ऑफ ग्राफ, तो ओम्स यहां फेल Yes, कर sir. गया यहाँ पे। सो दिस इज द फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ। यही कारण है कि ओम्स लॉ को हम लोग यूनिवर्सल लॉ नहीं बोलते हैं। इस बायसिंग ऑफ करंट में कहीं पे किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। इस बायसिंग ऑफ करंट में किन्हीं को कहीं पे भी दिक्कत है समझने में तो आप पूछ सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम? no, sir. नो सर, चलिए अच्छी बात है। चलिए कल नेक्स्ट क्लास हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर के बाद फिर क्या पढ़ना है? आफ्टर सेमीकंडक्टर क्या स्टडी करना है फिर से? कुछ सोचा है आपने कि कहां पे क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? क्योंकि ऑलमोस्ट तो ये कंप्लीट हो गया, फिर से रिवीजन। लास्ट तो सेमीकंडक्टर ही है। Yes, sir. तो कोई और चैप्टर में कहीं दिक्कत है आप लोगों को तो बोल सकते हैं, मैं फिर से उस चैप्टर को पढ़ाऊं बताऊंगा। मॉडर्न फिजिक्स पे कमांड कीजिए। मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक्स हैं जहां पे नेचर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। लगभग 22-23 नंबर का क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आता है। इस मॉडर्न फिजिक्स पे कमांड कर लीजिएगा ना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे मजेदार बात यह है कि इस चैप्टर में जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। तो आप मुझको बताओ, कल तो मैं रेक्टिफायर पढ़ाऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसके मुझको बताइए, इसके बाद कोई और चैप्टर को स्टडी करने हैं आपको? हेलो, आप फिर से पढ़ाई करके रखिए और उसके बाद देखिए कहां पे आपको दिक्कत हो रही है। अगर आपको किसी चैप्टर में दिक्कत है तो आप मुझको बताएं, मैं उस चैप्टर को फिर से स्टडी करूंगा। क्या अंजलि रंजन, हर्षराज, यस सर। कोई और चैप्टर को फिर से पढ़ना है? सर एक बार और सर रे ऑप्टिक्स का और वेव ऑप्टिक्स करवा दीजिए रिवीजन। चलो ठीक है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कल तो सेमीकंडक्टर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद रे Yes, ऑप्टिक्स sir. वेव ऑप्टिक्स स्टडी करेंगे। इसलिए आप लोग एक बार